Hello everyone, my name is Anurag Singh. Welcome to Pahuja Law Academy, and this is a demo lecture for the Negotiable Instruments Act of 1881. Now, first thing we need to understand is the meaning of the word negotiable instrument, right? So first we are going to look at the individual meaning of the words negotiable and instruments, and then we are going to look at the combined meaning of these words. So the word negotiable means easily or freely transferable. The word negotiable means easily or freely transferable. And the word instrument means a legal document which either creates a right or declares a liability. Which either creates a right or declares a liability. Right? So the individual meaning of the words negotiable and instrument, negotiable means easily or freely transferable, and the meaning of the word instrument is a legal document which either creates a right or declares a liability, right? So taken together, इन दोनों का मतलब क्या होगा? इन दोनों का मतलब होगा a negotiable instrument is an easily or freely transferable legal document which either creates a right or declares a liability. But in case of a negotiable instrument, याद रखना, what kind of right और लाइबिलिटी आर वी टॉकिंग अबाउट, बिकॉज यहाँ पर राइट और लाइबिलिटी जो है उसकी बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग्स होती हैं. जैसे यहाँ पर राइट इज द राइट टू रिसीव पेमेंट, द राइट टू रिसीव पेमेंट, फर्स्ट थिंग. द अदर थिंग इज गोइंग टू बी लाइबिलिटी, एंड द लाइबिलिटी इज द लाइबिलिटी टू पे, द लाइबिलिटी टू पे, राइट? सो इंस्ट्रूमेंट की जो जेनेरिक मीनिंग है लीगल डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स अ राइट और डिक्लेयर्स अ लायबिलिटी, उसे जब हम लोग एनआई के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं वहां पर द राइट इज द राइट टू रिसीव द पेमेंट एंड द लायबिलिटी इज द लायबिलिटी टू पे. ठीक है? सो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दिस इज दैट a negotiable instrument is an easily or freely transferable legal document which either creates a right or declares a liability, and such right is the right to receive the payment and the liability is to pay. Okay? That is the meaning of a negotiable instrument. Now, how many kinds of negotiable instruments are there? There can be many kinds of negotiable instruments like promissory note, bill of exchange, checks, hundi, shares, debentures, demand draft. All of these are negotiable instruments, right? But according to the NI Act, there can be only three kinds of negotiable instruments, right? So the NI Act के according to the Act of 1881, इसके according there can be only three kinds of negotiable instruments, right? कौन कौन से? It can be promissory notes, also known as P notes. The other one is bill of exchange. The other one is bill of exchange, and the third one is checks. ठीक है? So याद रखो कि there can be n number of negotiable instruments, right? But according to the NI Act, there can be only three kinds of negotiable instruments. कौन से? Promissory notes, bills of exchange, and checks. Now, promissory notes are covered under Section 4, bill of exchange under Section 5, and checks are covered under Section 6, right? So NI Act के अकॉर्डिंग, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, there can be many other kinds of negotiable instruments which are not covered under the NI Act. NI Act के अकॉर्डिंग there can be only three kinds of negotiable instrument. Section 13 जो है वो बहुत ही क्लियरली कहता है, under Section 13 of the NI Act, it is said that this act recognizes only three kinds of negotiable instruments: promissory notes, bills of exchange, and checks, right? Now, we have to see what are the essential features. So we cannot go into the details of all the three, but what we will do, हम लोग करेंगे promissory notes के essential features क्या है. So let's start with the promissory note. Firstly, what is a promissory note? ठीक है? A promissory note is essentially a promise to pay. Promissory note क्या है? It is a promise to pay. जैसे तुम लोगों ने करेंसी नोट पे भी देखा होगा, करेंसी नोट पे क्या लिखा था? आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ 100 रुपीज, राइट? वहां पर भी क्या लिखा है? प्रॉमिस टू पे. और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द एनआई एक्ट, याद रखना यहां पर लिखा है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ठीक है?
So what is a promissory note? It is essentially a promise to pay or an unconditional undertaking. So suppose मान लेते हैं A purchased a TV from B. Okay, suppose this TV is worth rupees 40,000. ठीक है? Now rupees 40,000 का TV है. Instead of paying, what A did, A on a piece of paper, he wrote, I promise to pay rupees 40,000 to B. ठीक है? This piece of paper will then be signed by A. He is going to sign it, and according to the Stamp Act उसे properly stamp भी कराना पड़ेगा. But that is not our scope of study. हम लोग अभी सिर्फ negotiable instrument देख रहे हैं. But हाँ, याद रखना proper stamping भी necessary होती है according to the Indian Stamp Act of 1899. ठीक है? So what is a promissory note? It is essentially a promise to pay. यहाँ पर he takes, जिसे हम लोग कहते हैं unconditional undertaking. What does it mean? It means A takes it upon himself that I will pay. ठीक है? So A ने क्या किया है? I promise to pay rupees this much to B. This is an example of a promissory note. ठीक है? And don't think of it कि promissory note is a very big document. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. As currency note जो है, that is also a promissory note. Although there is a conflict between RBI Act of 1934, Section 31, and Section 4 of NI Act, but ये टॉपिक जो है इट नीड्स अ सेपरेट डिस्कशन. तो यहाँ पर नहीं, बट वहाँ पर भी क्या लिखता है? देखो, करेंसी नोट कितनी होती है? छोटी सी होती है. इट फिट्स इन योर पॉकेट. कई बार हम लोग लीगल डॉक्यूमेंट सोचते हैं तो सोचते हैं कि बड़ा सा होगा, लाइक अ प्लेन और कॉन्ट्रैक्ट. बट प्रॉमिसरी नोट वगैरह बहुत छोटे होते हैं. इट कैन फिट इन योर पॉकेट एनी टाइम. ठीक है? अब देखो, तो प्रॉमिसरी नोट में हम लोगों ने देखा वन पर्सन प्रॉमिसेस द अदर पर्सन दैट आई विल पे इट टू यू. राइट? अब ए जो है, जिसने की वो प्रॉमिसरी नोट बनाया है, ठीक है, द पर्सन हु प्रॉमिसेस टू पे इज नोन एज द मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट. ठीक है? जो भी प्रॉमिसरी नोट बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट. और बी जो है, जिसके फेवर में बनाया गया है, जिसके लिए बनाया गया है प्रॉमिसरी नोट, दैट पर्सन इज नोन एज द पेई. ठीक है? तो in a promissory note there are two parties. One is the maker and the other one is the payee. और याद रखना, it must be signed by the maker. यहाँ पर पे के सिग्नेचर जो है नेसेसरी नहीं होते. There is one scenario जहाँ पर कि पे के सिग्नेचर भी चाहिए होंगे, that is in case of endorsement, और वो बहुत बात की बात है. अभी तुम लोग बहुत बेसिक्स ही कर रहे हैं. So just give you a overview कि promissory note क्या होता है. Now let us look at the essential features or essential characteristics of a promissory note. So essential characteristics of a promissory note, right? अब देखो, number one, it is an express promise to pay. ठीक है? It is an express promise to pay. So first of all, promissory note क्या है? It is an express promise to pay. जैसे, let's look at an example. Suppose A writes that I owe rupees 40,000 to B. ठीक है? Is this a valid promissory note? No, it's not a valid promissory note. Why? Because this is merely an acknowledgement of a debt. Acknowledgement of a debt. The promise to pay is missing. देखो, मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे 40,000 रुपए मेरे पास है, बट इसमें कहीं प्रॉमिस टू पे नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं तुम्हारे 40,000 तुम्हें पे कर दूंगा. नहीं, दैट पार्ट इज मिसिंग. सो दैट इज व्हाई दिस इज अ merely an acknowledgement of debt and this cannot be deemed as a promissory note. ठीक है? So first thing, there must be an express promise to pay. Promissory note है, promise to pay होना ही चाहिए. First thing. Second thing is parties. Parties कौन कौन होती हैं in a promissory note? There are two parties. ठीक है? The one who makes the promissory note is the maker
and in whose favor the promissory note has been made, he is the payee. ठीक है? So there are two parties in a promissory note. Now next, number three. देखो promissory note में किसके सिग्नेचर होने चाहिए? It must be always signed by the maker, right? क्योंकि उसका जो सिग्नेचर है एक्चुअली वही रिकॉग्नाइज करता है या वही असेंट देता है लायबिलिटी को. ठीक है? और देखो अगर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या होती है. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज एन इजीली और फ्रीली ट्रांसफरेबल लीगल डॉक्यूमेंट वेयर which either creates a right or declares a liability. Right कैसा है? Right is the right to receive payment and the liability is to pay. Right? तो यहां पर in case of a maker and payee हम लोग ये कह सकते हैं कि the maker has the liability to pay. The maker has the liability to pay. And the payee has the right to receive payment. ठीक है? So right to receive the payment is with the payee and the maker has the liability to pay. So promissory note is also a negotiable instrument. We can see कि यहाँ पर एक पार्टी का right है to receive the payment, the other party has a liability to pay. Both things are fulfilled here. Number three, it must always be signed by the maker. Signed by the maker. So suppose let's say A promises, A ने promissory note बनाया and he said I promise to pay rupees 40,000 to B. ठीक है? This is A who has made the promise to pay, right? तो इस पर सिग्नेचर किसके होने चाहिए? सिग्नेचर होने चाहिए A के. It must be signed by A. ठीक है? तो मेकर के सिग्नेचर होने चाहिए because A is the maker, right? Maker of a promissory note. तो उसके सिग्नेचर जरूर होने चाहिए. चलो, that was number 3. Number 4, the promise to pay, जो money है, that amount needs to be an exact or a certain amount. ठीक है? So the amount must be a certain amount, right? और कहीं कहीं ये भी लिखा होता है an exact amount. So जैसे रुपीज 40,000 है, it's an exact amount. So that is a promissory note. लेकिन अगर मान लो यहीं पर A ने लिखा होता I promise to pay rupees 40,000 and all other debts to be, right? यहां पर देखो, is this an exact amount या certain amount? No, it's not, because देखो 40,000 तक तो ठीक था, but आगे क्या आ गया? Words all other debts. This point, all other debts, makes it an uncertain amount because कितनी डेट्स हैं और क्या है डेट्स. ठीक है? ये चीज नहीं पता, अनसर्टेन अमाउंट हो जाता है. इसीलिए हम लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे कि प्रॉमिसरी नोट अनसर्टेन अमाउंट के लिए होगा. इट मस्ट बी फॉर अ सर्टेन अमाउंट. ठीक है? नंबर 5, ठीक है, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी ऑफ मनी ओनली. याद रखना इसे. द प्रॉमिस टू पे must be of money only. ठीक है? जैसे अगर मान लो कि A ने लिखा है I promise to pay rupees 40,000 to B and my black horse. ठीक है? Now here, although there is a promise to pay, चलो यहां पर मान लेते हैं साइंड बाय ए भी है. ठीक है? There is a promise to pay, there is an exact amount, but there is also a signature of the maker. But यहां पर क्या है? My black horse. This is not money. Not money, right? So हम लोग क्या कहेंगे? This promissory note is not a valid promissory note because क्या होना चाहिए?
प्रॉमिस टू पे मस्ट बी ऑफ मनी ओनली, ठीक है। नंबर 5। नंबर 6 इज द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी टू अ सर्टेन पर्सन। द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी टू अ सर्टेन पर्सन, ठीक है। और यहीं पे आ जाएगा और हिज ऑर्डर, ठीक है। देखो इससे क्या मतलब होगा, जैसे मान लेते हैं ए ने बी के फेवर में एक प्रॉमिसरी नोट बनाया और इस पर लिखा आई प्रॉमिस टू पे ₹40,000 टू बी और हिज ऑर्डर, ठीक है। देखो यहां पर आई प्रॉमिस टू पे ₹40,000 टू बी और हिज ऑर्डर, इसका मतलब क्या है? टू बी को अगर हम लोगों ने कह दिया टू बी दिस इज अ सर्टेन पर्सन, ठीक है। लेकिन उसके बाद ही क्या लिखा हुआ है? और हिज ऑर्डर, इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स टू एनीवन बी सेज, सो ए सेज दैट आई विल पे ₹40,000 टू बी और टू एनीवन दैट बी सेज। अगर मान लो ए ने कहा, सॉरी बी ने कहा कि तुम पेमेंट मुझे मत देना, सी को दे देना, राइट? तो वहां पर बी के कहने पर वो सी को देगा। तो और हिज ऑर्डर का मतलब हिज ऑर्डर, जिसे बी कहेगा उसे जाएगा वो पेमेंट, ठीक है। उसके पहले उसके अलावा किसी और के पास वो नहीं जाएगी, ठीक है। सो प्रॉमिस टू पे मस्ट बी टू अ सर्टेन पर्सन। अब टू बी तो सर्टेन पर्सन है, बट और हिज ऑर्डर, क्या ये सर्टेन पर्सन है? वेल कॉमन पार्लेंस से अगर हम लोग देखें तो ही इज नॉट अ सर्टेन पर्सन, ठीक है। बट जब भी आगे ट्रांसफर करता है किसी को, उसे हम लोग इंडोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। याद रखना कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की फर्स्ट फीचर क्या है? फर्स्ट फीचर इज इट मस्ट बी इजीली और फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो अगर मान लो यहां पर ए ने बी को दे दिया और बी ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है आगे, दैट इज द लिटरल नेगेशन ऑफ द वर्ड नेगोशिएबल, क्योंकि वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए। तो ए ने बी को प्रॉमिस किया है ना, बी हैज टू पे सी। मान लो कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट है, बी हैज टू पे सी, सी हैज टू पे डी, डी हैज टू पे ई, आगे वो पूरी चेन बनी हुई है, राइट? अब बी जो है इसे कहता है कि देखिए पैसे मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे दोगे ना तो मैं भी सी के पास ही जाऊंगा, सी को ही दूंगा, ठीक है। सो एट दैट टाइम याद रखना कि बी जो है वो काम कैसे करता है? ही डज इट बाय इंडोर्समेंट, और इंडोर्समेंट में ही विल राइट बी। देखो मान लेते हैं कि ए ने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया बी के फेवर में ना, बी वांट्स टू ट्रांसफर इट टू सी, तो वो प्रॉमिसरी नोट पे ही क्या लिखेगा? पे टू सी एंड देन दिस विल बी साइंड बाय बी, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं कि पे टू सी ये चीज आकर के इसने सर्टेन बना दिया। तो इंडोर्समेंट में भी हम लोग किसी पर्सन को सर्टेन बना सकते हैं। तो और हिज ऑर्डर वाला जो पॉइंट आता है दैट इज एक्चुअली फॉर बीज इंडोर्समेंट, और बी जब भी इंडोर्समेंट करता है देयर विल बी ए डायरेक्शन टू whom इट मस्ट बी पेड, राइट? सो ये चीज याद रखना कि द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी टू अ सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर, ठीक है। चलो नंबर 7, ठीक है। नंबर 7 जो है वो बात करता है प्रॉमिसरी नोट की, लेकिन प्रॉमिसरी नोट भी ब्रॉडली स्पीकिंग दो टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर 7 उन्हीं की बात करता है कि दो टाइप के होते हैं। एनआई एक्ट किससे डील करता है? तो इसे समझना, प्रॉमिसरी नोट कैन बी ब्रॉडली स्पीकिंग ऑफ टू टाइप्स, वन विच इज पेबल टू बेरर, ठीक है, एंड द अदर वन विच इज पेबल टू ऑर्डर, ठीक है। पेबल टू ऑर्डर तो हम लोगों ने देखा, और हिज ऑर्डर जो है वो पेबल टू ऑर्डर है। पेबल टू बेरर, पेबल टू बेरर का मतलब क्या होता है? हुएवर हैज द पोजेशन ऑफ, हैज द पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ऑफ द प्रॉमिसरी नोट, राइट? जैसे कि हम लोग करेंसी नोट वगैरह पे देखते हैं, करेंसी नोट्स पे क्या लिखा होता है? करेंसी नोट्स पे लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, या फिर हिंदी में क्या लिखा होता है? मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, राइट? वो वचन क्या है? प्रॉमिस है, ठीक है। तो वहां पर भी अभी देखो, जैसे कि वो मान लो कि 500 रुपए की नोट है, अगर जब तक मेरे पास है
आई एम दी ओनर एंड आई एम द वन हु इज गोइंग टू बी पेड, बिकॉज अभी तक मेरे पास है पोजेशन। लेकिन अगर मेरे से गिर गया या मेरे से किसी ने चुरा लिया, तो वो पर्सन जिसने चुराया है या जिसे मिल गया है, दैट पर्सन बिकम्स द ओनर। या फिर मान लो मैंने वॉलंटरली किसी और को दे दिया है, जस्ट द फिजिकल हैंडिंग ओवर ऑफ द पोजेशन, वो क्या कर देगा, उस पर्सन को बना देगा बेरर, और प्रॉमिसरी नोट कैन बी पेबल टू बेरर। लेकिन एक बात याद रखना, एनआई एक्ट जो है वो पेबल टू बेरर वाले के लिए नहीं है। ऑल्दो सेक्शन 4 में ये चीज लिखी है, बट पेबल टू बेरर जो है only two persons, only two can issue promissory note which is payable to bearer, और ये है हमारे आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि ये चीज सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 उसे क्लियरली बोलता है कि a promissory note which is payable to bearer can only be issued by the RBI and the government of India. बट जो दूसरा पार्ट है पेबल टू ऑर्डर, दिस कैन बी मेड बाय एनीवन एंड दिस इज रेगुलेटेड बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881। ठीक है, ये चीज याद रखना कि प्रॉमिसरी नोट जो है ब्रॉडली स्पीकिंग दो टाइप के हो सकते हैं, विच इज पेबल टू बेरर एंड विच इज पेबल टू ऑर्डर। ठीक है, तो एनआई एक्ट किसकी बात करता है, एनआई एक्ट बात करता है प्रॉमिसरी नोट विच इज पेबल टू ऑर्डर। अगर प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर है, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर द एनआई एक्ट, ऑल्दो सेक्शन 4 में लिखा होगा ये, बट याद रखना दैट इज नॉट द केस, बिकॉज आरबीआई एक्ट का सेक्शन 31 जो है वो स्पेसिफिकली इस चीज को प्रोहिबिट करता है। और सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट स्टार्ट्स विथ नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मतलब कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कुछ भी लिखा हो उसका यहां कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। वन which is extra, which is not in the NI Act, but वहां पर कई जगह आपको ट्रेसेस मिलेंगे, it is कि that the promissory note must be properly stamped। ठीक है, properly stamped, ये जो स्टैंपिंग वाला पार्ट है, this is the Indian Stamp Act of 1899। ठीक है, तो दिस इज नॉट अंडर द एनआई एक्ट, बट फिर भी याद रखना कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वहां पर हम लोग हमेशा देख सकते हैं कि प्रॉमिसरी नोट जो है वो प्रॉपर स्टैंपिंग हो जानी चाहिए उसकी। ठीक है, सो दीज आर फ्यू फीचर्स और द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। देखो जस्ट रिवीजन, फर्स्ट इट इज एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। ठीक है, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, दिस इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, नंबर वन। नंबर टू, कितनी पार्टीज होती है, देयर आर टू पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट। कौन कौन सी, मेकर जिसने बनाया है एंड द पे जिसके फेवर में बना है। ठीक है, सो द मेकर हैज द लायबिलिटी टू पे एंड द पे हैज द राइट टू रिसीव द पेमेंट। ठीक है, नंबर थ्री इज इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था ए और बी का, इट मस्ट बी साइंड बाय ए बिकॉज ए इज द मेकर। उसका सिग्नेचर ही एक्चुअली सिग्निफाई करता है कि लायबिलिटी टू पे किसकी है, ए की है। ठीक है, नंबर फोर, द अमाउंट मस्ट बी अ सर्टेन अमाउंट और एन एग्जैक्ट अमाउंट। ठीक है, सो यहां पर 40,000 तो ठीक है सर्टेन अमाउंट है, बट अदर डेट्स दिस मेक्स इट अनसर्टेन, दैट इज व्हाई ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है या ये प्रॉमिसरी नोट जो है दिस इज नॉट वैलिड। नेक्स्ट, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी ऑफ मनी ओनली, सिर्फ मनी का होना चाहिए। तो ₹40,000 तो मनी ओनली है, लेकिन यहां पर जो माई ब्लैक हॉर्स आ गया है इसकी वजह से दिस बिकम्स एन इनवैलिड प्रॉमिसरी नोट। द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी टू अ सर्टेन पर्सन और टू हिज ऑर्डर। तो इफ दैट पर्सन इज नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट वो भी आ जाता है सर्टेन पर्सन में, और टू हिज ऑर्डर वाला जो पार्ट है जिसमें कि बी इंडोर्समेंट करके किसी और को भी बता सकता है, दैट पार्ट इज आल्सो कवर्ड, दैट पास इट द सर्टेन पर्सन। ठीक है, इंडोर्समेंट के थ्रू। और प्रॉमिसरी नोट जो है इट कैन बी ब्रॉडली स्पीकिंग ऑफ टू टाइप्स। कौन से, प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर जहां की जो कि सिर्फ आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, एंड प्रॉमिसरी नोट पेबल टू ऑर्डर, एनीवन कैन डू इट अंडर द एनआई एक्ट। एनआई एक्ट जो है वो प्रॉमिसरी नोट पेबल टू ऑर्डर की ही बात करता है। सो वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द प्रॉमिसरी नोट अंडर द एनआई एक्ट इज इट मस्ट बी पेबल टू ऑर्डर। ठीक है, नहीं लास्टली
This is not covered under the NI Act, but the promissory note must be properly stamped according to the Indian Stamp Act of 1899. Okay? So these are the few essential features of a negotiable instrument. हम लोगों ने एक ही example लिया था, which is a promissory note, and the other ones which are outside the scope of this video. But still, you can see कि हम लोगों ने जो essentially बात की थी starting में कि a negotiable instrument जो है उसके क्या features होते हैं. It is an easily or freely transferable legal document which either creates a right or declares a liability. The right is the right to receive payment, and the liability is to pay, right? So with that, I will be ending this lecture. Thank you, everyone.